تو मैंने जानी पहचानी नहीं है, लेकिन बहुत मशहूर और मारूफ है मुल्क की सतह पर। मौलाना की मुस्तकिल शनाख्त है, मौलाना शेखुल हदीस है। न काबा की ज़मीं देखी न पहुँचा मैं मदीने में, मैं अब जाऊँ कहाँ हैं ये अरमान है मेरे सीने में। न काबा इलाही कोई कतरा पड़े हम सब के सीने में, इलाही الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اے رب کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے رب کریم ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اے رب کریم جس نیک نیتی کے ساتھ اے رب العالمین یہ خدمت انجام دینے کی غرض سے ارادے کیے گئے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے، اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے رب کریم مداومت کے ساتھ انجام کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب کریم خدمت خلق کا جذبہ عام و تام فرما دے، اللہ عام و تام فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کے لیے حج مبرور نصیب فرما، صحیح مشکور نصیب فرما۔ اے رب کریم حج کا اسباب مہیا فرما دے، اپنے مقدس گھر کی زیارت کرا دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کی زیارت کرا دے۔ اے رب کریم ہم سب کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزی فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلا دے، نامرضیات ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یہ میرا نام جو ہے وہ پرانا ہی نام ہے، الحمدللہ میرا 2010 سے کام چالو ہے، اور ابھی تک جتنے بھی حاجیوں کی خدمت کا موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، الحمدللہ میں نے حاجیوں کی دعاؤں سے اس کو بحسن خوبی نبھایا، اور خدمت بھی الحمدللہ خود اپنی ذات سے کیا، کسی کے بھروسے پہ نہیں کیا۔ اور میرا جو ہے یہ 2010 سے اسی نام سے ہے، ریان ٹورس اینڈ ٹریولس، اور یہ نام میرے کسی بیٹے کا یا بھتیجے کا یا بھانجے کا نہیں ہے۔ ایک دن عصر کی نماز میں میرے کو ایسی خیال آیا کہ میں اپنا آفس چالو کر رہے تو اس کا نام کیا رکھنا چاہیے، تو عصر کی نماز کا سلام پھیرتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ ریان باب الجنہ، جنت کا ایک دروازہ ہے جو اسپیشل اس سے روزدار جائیں گے جنت میں۔ تو ہمارا بھی کام انشاءاللہ لوگوں کی مغفرت کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور حج تک عمرے تک پہنچانا ہے۔ تو پہلے دن ہم نے یہ دعا کری کہ اللہ ہم کو اگر یہ کام میں ڈال رہا تو عزت عافیت کے ساتھ میں ڈال، اور نیت ہماری خدمت کرنے کی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ اللہ ہم کو قائم رکھے، حاجیوں کی خدمت ہم سے آخری دم تک لے، اور جتنی ہو سکے انشاءاللہ ہم
फिर से उसको लॉकडाउन का जो बीच में काल था, इसमें सभी लोगों के कारोबार सब बंद थे, उस दौरान हमारा भी बंद हो गया था। तो फिर से दोबारा हम उसको शुरू किए। तो लोगों की बहुत डिमांड थी कि भाई आप ऑफिस डालो। जो हमारा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रुप गया पिछले 18 तारीख को, 18 अगस्त को एक ग्रुप हमारा गया बॉम्बे से। फिर अगले महीने में अल्हम्दुलिल्लाह 4 ग्रुप है। 2 तारीख को एक है, 16 तारीख को एक है, 19 तारीख को एक है और 27 तारीख को। ये अक्टूबर के महीने के 4 ग्रुप है, जिसमें से 3 15 दिन के है, एक 20 दिन का है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 फ्लाइट डायरेक्ट है और 20 दिन वाले की फ़्लाइट वाया है। और सबके PNR, हमारे होटल, हमारा खाना अल्हम्दुलिल्लाह सब। और कुछ हाजी मेरे आए हुए हैं जो मेरे साथ पहले 2014 में 2016 में आके गए थे। आप उनसे भी पूछ सकते हैं मेरी सर्विस के बारे में, मेरे काम के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाता हूँ। पहले मैं अकेला था। एक बात और खुसूसी आप लोगों को ये बता दूँ, पहले अकेला था तो मेरी खिदमत थी। अब मेरे साथ में मेरे बड़े भाई अब्दुल सत्तार मौलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब उलमाओं का साथ भी है मेरे साथ में। तो अब जो होंगी रवानगी तो तजुर्बेकार उलमाओं की रहनुमाई में होंगी इंशाअल्लाह। आपका जो है तो नया हटकर क्या देना चाहते हैं आप सहूलत? हटकर साहब जो लोग बोलते कि हम हटकर देंगे, पहली बात तो मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि हटकर कुछ नहीं देना है। हर हाजी को उम्रे में सफ़ेद एहराम बांधना है, चप्पल पहनना है, अंदर ना चड्डी ना बनियान कुछ नहीं पहनना है, और वही मताब में तवाफ़ करना है और सफ़ा मरवा पे सही करना है। तो उम्रे का जो मकसद है इंसान का, खालिस अल्लाह की इबादत के लिए जाना है। अब ये सर्विसें जो है तो हम जो ज़रूरत ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह खाना तीनों वक्त हिंदुस्तानी देंगे। हरम से बहुत नज़दीक, मतलब अजान होने के बाद आप हरम को पैदल जाके बाद जमात नमाज़ पढ़ सकेंगे। 400 से 500 मीटर मक्के में हमारी होटल रहेंगी, 200 से 250 मीटर के अंदर हमारी मदीने में होटल रहेंगी। उसके अलावा हमारा मक्के में 3 टाइम खाना, होटल, लॉन्ड्री, 2 टाइम अनलिमिटेड लॉन्ड्री है हमारे पास में। उसके अलावा मक्के की ज़ियारत है, मदीने की ज़ियारत है, जो सब देते हैं वो हम देंगे। लेकिन जो स्पेशलिटी बता के देते हैं लोग वो हमको जी चीज़ हमको एक ही नज़र आई कि आप इंश्योरेंस के साथ में जैसे उम्रे के लिए हज के लिए रवाना करने वाले जी, उसमें कितना बेनिफिट मिलेगा हाजियों को? और जो उसमें 100% बेनिफिट है हाजियों को कि उसमें अगर हाजी का कुछ भी होता है तो ये अभी तो सऊदी हुकूमत का अभी का रूल है। ये पहले अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत का ये उसूल था कि हाजी जो भी जाता था, अगर वहाँ तबीयत ख़राब होती थी, और तकरीबन हाजियों की होती है, पानी वगैरह चेंज होने से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हाजियों की तबीयत ख़राब होती है, तो वो सऊदी हुकूमत की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता था वो। लेकिन अभी सऊदी हुकूमत ने ही वो इंश्योरेंस बनाई उनकी। जो इंश्योरेंस का पैसा हम ले रहे हैं हाजियों से, जो इंश्योरेंस बन रहा है वो सऊदी हुकूमत का पैसा है। तो वो सऊदी हुकूमत ही वो इंश्योरेंस ले रही है। और हाजी का छोटे से छोटा माइनर हो या मेजर हो, जो भी प्रॉब्लम रहेगा इंशाल्लाह अल्लाह सेहत आफियत के साथ में रहेंगे तमाम हाथ जाँच को, लेकिन जो भी रहेगा वो इंश्योरेंस में उसका और प्लेन है। आपका सिर्फ औरंगाबाद शहर में ऑफिस है या इसके अलावा भी कोई ऑफिस? जी नहीं, अभी औरंगाबाद में एक है। औरंगाबाद से बाहर से लोगों को अगर जाना है तो आपके कैसे रास्ता करेंगे? अभी फ़िलवक़्त औरंगाबाद में है मेरा ऑफिस, और इसकी एक ब्रांच है नायगांव में। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी रनिंग में गुजरात गोधरा से हाजी है, सूरत से है, नवसारी से है, उस्मानाबाद से है, जालने से है। अभी जालने के हाजी मेरे पास में, तो उनको दावत दिया तो आए हुए हैं, जालने के आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नगर से मेरे पास हाजी, बॉम्बे से हाजी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम जो पुराना है तो मेरे ताल्लुकात के हिसाब से अभी तक मेरा फ़ोनों पे काम चालू था। अब कुछ लोगों के इसरार पे मैंने ऑफिस की इफ्तिताह की, ये बात तो हकीकत है कि पुराना एक्सपीरियंस आपके पास में है और खुद का है। उसका पूरा फायदा जो है तो हाजियों को और उम्रे को जाने वालों को इंशाअल्लाह बिल्कुल जो है तो देंगे। इंशाअल्लाह इसमें और आपकी जो फ्लाइट है वो मुंबई से रहेगी या औरंगाबाद से रहेगी? वो हाजियों के रिक्वायरमेंट के ऊपर रहेगा। ज़्यादा करके तो हम मुंबई से फ़्लाइट रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो सहूलत है, हर कोई उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई औरंगाबाद से औरंगाबाद दे। अगर वो औरंगाबाद से औरंगाबाद चाहते हैं तो इंशाल्लाह औरंगाबाद से औरंगाबाद भी देंगे फ़्लाइट से, या नहीं तो यहाँ से लग्जरी से हम बम्बई लेके जाएंगे, बम्बई से वापस लग्जरी से लेके आएंगे। आखिरी सवाल, एक बंदे को अगर उम्रा जाना है, जी सुनो बात करो अपना। एक बंदे को अगर उम्रा जाना है तो उसका कितना पैसा आपके पास में पे करना पड़ेगा? आप एक फिक्स अमाउंट बता सकते हैं, और अगर आप उसमें ये भी बोल सकते हैं कि हम आने के बाद में रास्ता होने के बाद में इसमें कम ज़्यादा हो जाएगा कोई हो मसला नहीं। इंशाल्लाह। तो आप ज़रा उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरव्यू तो देते हैं लेकिन जो है ना अमाउंट नहीं बताते, तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। अब इससे बात करने को डरता कस्टमर, क्या अमाउंट कितना बोलेंगे आके मुलाकात, ज़रा अमाउंट बता सकते हैं? हमारा अभी जो 15 दिन का पैकेज है वो 90,000 रुपये का है, और 20 दिन का पैकेज है 1 लाख रुपये। इसमें क्या क्या इंक्लूड है ज़रा प्लीज? इसमें इंश्योरेंस है विथ वीज़ा,
रिटर्न टिकट है फ़्लाइट की, होटल अकोमोडेशन है, मक्के का होटल और 3 टाइम खाना, जिसमें 2 टाइम जा रहा है ये लॉन्ड्री मक्के में, और मक्के की पूरी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत है। वहाँ से फिर मदीना ट्रांसपोर्टेशन, मदीने के होटलें, ज़ियारत, खाना, वहाँ से रिटर्न बॉम्बे तक। मतलब सिर्फ हाजी ने अपनी शॉपिंग करना है, उसके अलावा कोई चीज़ का पैसा नहीं देना। हम जो पैसा ले रहे हैं उसमें टिकट भी है, वीज़ा भी है, खाना भी है, होटल भी है, रहना भी है, दवा खाना भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हर चीज़ की रहनुमाई हम खुद कदम ब कदम, भाई खुद रहूँगा साथ में, ये हमारे बड़े भाई आपका रहेंगे। एक बंदा ऑलरेडी साथ में रहेगा टीम बिल्कुल, में। जाके आए तक हर ग्रुप में हमारा एक बंदा साथ एक है। ग्रुप में कितने लोग शामिल? 50 तक के हैं जी। अगर उसमें अगर कुछ कम होते तो भी आप तो भी ले भिजा फिक्स देंगे। रहेगी। जो डेट हमने दे दिया उसी दिन फिर आपको भले तारीख 10 हो, फ्लाइट की 15 टिकट या भी मिलेगी 50 जो भी होंगे उसमें भेज इंशाल्लाह। देंगे। डिले नहीं होगा। नहीं होगा इंशाल्लाह। ओके, आप यहाँ पे कस्टमर कैसे पहुँचे, आपसे कैसे कांटेक्ट करें, वो एड्रेस बता दीजिए और आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। स्क्रीन पे तो हम चलाएंगे, लेकिन अगर आप अल्फाज से बता देंगे तो अच्छा है। मेरा रैयान टूर्स एंड ट्रैवल्स है, मेरा नाम हसन बिन समेदा है, और ये मदनी चौक सेंटर नाका रोड रोशन गेट से करीब है, औरंगाबाद में। और मेरा मोबाइल नंबर है 9923299288। अगर इस पे भी आप मुझसे रब्ता कायम करना चाहते तो एनी टाइम। वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन हक़्क़ुल्लाहि अल-मुआज़नतु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गान मुहतरम, ये जानकर खुशी हुई कि आप हज़रात ने खिदमत खल्क़ की नीयत से ताउन करने के लिए आपने इदारा कायम किया है, दफ्तर कायम किया है, जो बिलाशुबा एक मुस्तहसन इक़दाम है। और जब नीयत सालिम होती है तो हक़ ताला की तरफ से नुसरत भी होती है। इसलिए किसी काम के लिए अगर उसमें कामयाबी होती है तो 3 चीज़ें उसकी शर्त हैं। पहली चीज़ ये है, सबसे पहली चीज़ इखलास नीयत। दूसरी चीज़ इत्तिबा सुन्नत। तीसरी चीज़ उस पर मुदावमत हो, दायमी हो। ये 3 शराइत पूरी होंगी तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की मंजिल करीब होती चली जाएगी। और इसमें से किसी एक चीज़ की कमी रह जाती है, कोई एक चीज़ छूट जाती है तो मंजिल तक रसाई मुश्किल होती है। इसलिए इन 3 चीज़ों की अहमियत है, इसीलिए इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। मैंने आयत करीमा पढ़ी इस मुनासिबत से। हक़ ताला का फरमान फरमाया वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। लोगों पर अल्लाह का हक़ है ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर इस्तिताअत है। अल्लाह ने माल व असबाब से नवाजा है। जब माल व असबाब से नवाजा है
تو ان پر حق تعالیٰ کا یہ حق ہوتا ہے کہ بیت اللہ کا سفر کرے، بیت اللہ پہنچ کر حج کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج جو اسلام کے 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، ایک رکن ہے۔ سب سے پہلا رکن کلمہ شہادت کا پڑھنا، اقرار کرنا، اس کی شہادت دینا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، پھر حج اور زکوٰۃ ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا کہ نماز انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے اور خیر کی دعوت دیتی ہے۔ تو تھوڑی ہی دیر کے لیے ایک مومن اللہ کا گھر پہنچتا ہے، اپنے گھر والوں کی محبت کو، گھر والے کی انسیت کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے، اور جب اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی، اس طرح نکلتے جیسے آپ ہم لوگوں کو پہچانتے بھی نہیں، اس طرح نکل جاتے۔ یہ نماز کا اہتمام تھا، نماز کی قدر تھی۔ تو آج بھی ہمارے دلوں میں نماز کی یہ قدر ہونی چاہیے۔ جب اذان ہو گئی، اب بس اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ اب ساری چیزیں دنیا کی ایک طرف، اللہ کی پکار پر جانا ایک طرف۔ تو یہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے نماز کو جاتے ہیں تو گھر کی محبت گھر میں رکھی رہتی ہے، اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے مسجد چلے جاتے ہیں۔ پھر رمضان ہے تو نماز پڑھنے کے لیے کسی مال کی ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے امیر غریب سب کے لیے حکم برابر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے، ایک دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھوکا پیاس رہنے کا حکم دے دیا، ہم نے اسے برداشت کر لیا۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم آ گیا، جس کو اللہ نے نصاب کا مالک بنا دیا ہے، اس کے ذمہ زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہے۔ اور حدیث میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، مسل لہ یوم القیامت سجاعا اقرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ نے مال دیا ہے، پھر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اس کے مال کو اژدہا کی شکل دے دی جائے گی، اژدہا کی شکل دے دی جائے گی، اور اس کے گردن میں لٹک دیا جائے گا۔ وہ بھاگے گا، پھر بھی پکڑ لے گا، کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، تیرا ہی خزانہ ہوں۔ تو یہ کہہ کر وہ اژدہا اسے پکڑے گا، پھر اسے ڈسے۔ تو جس کو اللہ نے زکوٰۃ کا مالک بنا دیا، نصاب کا مالک بنا دیا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ تب زکوٰۃ کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا، خرچ کرنے کا حکم دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بخل مٹانے کی تربیت دے دی، بخل دور کرنے کی تربیت دے دی۔ اور جب حج کا موسم آیا، اللہ نے اسوت دی ہے، مال آپ کے پاس ہے، جب حج کے لیے جائیں گے تو حج میں جانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ حج سے لوٹنے تک گھر والے کے لیے کھانے پینے کی، رہائش کے سارے انتظامات آپ نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس اتنی رقم بچتی ہے کہ کفایت کے ساتھ جاتے ہیں، حج کے لیے آ جاتے ہیں۔ حج واجب ہو گیا، حج فرض ہو گیا۔ اس فرمان للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج کرنا واجب ہو جاتا ہے جب وہاں جانے کی استطاعت پیدا ہو جائے، خرچ کرنے کی استطاعت پیدا ہو جائے۔ تو یہ ہے، پھر میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، کچھ لوگ، 3 لوگ، ایک روایت میں 4 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ان چیزوں کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں الناکح الذی یرید العفاف، ایک آدمی نکاح کرتا ہے
और निकाह करने का मकसद इफ़्फ़त और पाक दामनी हासिल करना है। कुरान करीम में वाज़े अल्फाज फरमा दिया, फरमा मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। निकाह का मकसद इज़्ज़त, इफ़्फ़त, पाक दामनी को बाकी रखना है, सिर्फ शहवत रानी मकसूद नहीं। अगर शहवत रानी मकसूद हो तो जानवर में इंसान को कोई फ़र्क बाकी नहीं रह जाएगा। इसी तरीके फरमाया इसके बाद नाकिहुल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, एक निकाह करने वाला आदमी निकाह इसलिए करता है ताकि उनकी इफ़्फ़त पाक दामनी बाकी रहे, तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं। इसी तरीके से फरमाया अल-हाज और युरीदु रिज़ल्लाह इब्तिग़ा मर्ज़ातिल्लाह, हाजी हज करने के लिए जाता है तो उसका मकसद ये होता है अल्लाह ताला को राज़ी करना है। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए अगर कोई शख्स हज करता है तो अल्लाह ताला उससे खुश होता है। और जब हज करता है, हज पूरा हो जाता है, जब हज पूरा हो जाता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है जब हज करके आए तो ऐसा बेगुनाह हो गया, गुनाहों से ऐसा पाक हो गया जैसे आज ही माँ के पेट से दुनिया में आया। जब हाजी हज करता है और दुनिया ज़ाहिर है कि ऐसा पाक, जब आदमी माँ के पेट से आता कोई गुनाह नहीं होता है, कोई गुनाह नहीं होता है, बिल्कुल साफ शफाफ होता है। ऐसा लड़का अगर दुनिया से चला जाता है तो उसकी तो मग़फ़रत होती है, खुद माँ बाप के लिए दुआएं करते हैं, माँ बाप के लिए दुआएं करते हैं, माँ बाप को जन्नत लाते हैं। हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिनके 3 बच्चे दुनिया से चले गए तो वजन उसके लिए जन्नत की राह मुहर हो गई। किसी खातून ने पूछा अल्लाह के रसूल अगर किसी के 2 बच्चे गए हों ताकि वो भी, फिर एक ने पूछा अल्लाह के रसूल किसी का 1 बच्चा दुनिया से गया पर वो भी। फरमा फिर एक हदीस में कहा है हिल्फतल लिल खस्मी, मालूम ये हुआ अगर किसी वजह से दुनिया में गुनाही किया लेकिन मोमिन है, ईमान गलत में जाता है, हिल्फतल कसम, तो इतनी देर जहन्नम में गया जितनी देर कसम पूरी करने में लगती है, जितनी देर कसम पूरी करने में लगती है। तो मानवा के बच्चा दुनिया से जाता है उस पर सब्र करता है और सब्र करने के नतीजे में ये होता है कि वही बच्चा उनको जन्नत में लाता है। इसीलिए जब फरमाया गया जब हाजी हज करता है तो हज करने के नतीजे में अल्लाह जल्ला शानुहु उसको गुनाह से ऐसे पाक फरमा देता है जो छोटा बच्चा है, कोई गुनाह ही नहीं। और मैदान अरफात में जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया तो आप अरफात के मैदान में हैं, आप मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। सहाबा ने पूछा मा अज़हकल्लाहु या रसूल अल्लाह अज़हकल्लाहु दाइम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर किस चीज़ ने आपको हंसाया, हंसी आने का सबब क्या है? अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, हमेशा आपको हंसाए रखे, आपको जो हंसी आई इसकी क्या वजह है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ने अपने बंदों के हज को कबूल फरमा लिया और सबकी मग़फ़रत फरमा दी तो शैतान बिलबिला गया, शैतान बिलबिला गया, परेशान हो गया और शैतान अपने बाल को नोचने लगा, बाल पर मिट्टी डालने लगा। तो उसकी बेचैनी देखकर मुझे हंसी आ गई, उसकी बेचैनी देखकर मुझे हंसी आ गई, इसीलिए मुझे हंसी आई। तो ये हज का मकाम है, अल्लाह ताला हम सबको ऐसे हज नसीब फरमाए। तो आप हजरात ने इसके लिए ये इंतज़ाम किया है ताकि जाने वाले का ताउन भी हो और वो अंजाम भी उनके लिए सहूलतें पैदा हों। तो ज़ाहिर है कि आदमी के लिए सहूलत पैदा करना, आसानी पैदा करना, ये भी एक अजीम खिदमत खल्क़ है। ये अल्लाह ताला ने आपको दिल में ये बात डाली और ज़ाहिर है कि अल्लाह की तौफ़ीक़ होती है, उसी की तरफ दिल में बात डाली जाती है। जब आपके दिल में ये बात आ गई और आपने ये काम अंजाम दिया
वहाँ जाने के बाद में उमदा सर्विस थी, 100 मीटर 200 मीटर के अंदर होटल थी, बस की सर्विस थी, लॉन्ड्री थी, खाने के लिए माकूल इंतज़ाम था। माशाल्लाह इतना अच्छा था इंतज़ाम। एक रहता है ना नए शहर में जाने के बाद में, एक नई सिटी में जाने के बाद में, नई कंट्री के जाने के बाद में एक अजब सी बेचैनी रहती है कि वहाँ जाने के बाद अपना कौन ख्याल रखेंगे, आपको कैसे लैंग्वेज से डिपेंडेबल रहेंगे, उन लोगों पर कैसे डिपेंड रहेंगे, आपको किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो उसका काम जो डिपेंडेबल का जो काम था रैयान टूर्स एंड ट्रैवल्स में हमारे हाजी हसन बिन साबिदा साहब ने बहुत अच्छे से माकूल इंतज़ाम करके हमारा साथ दिए। वहाँ पर जो नए हाजी हज को जाने को तैयार हो रहे हैं और जो उम्रे को जाने का इरादा रखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए मैसेज ये देना चाहूँगा मैं, आप एक बार आइए, एक बार आप सब जगह जाएंगे, सब बुलाते हैं एक बार आने के लिए, सब जगह जाते हैं आप, आपके लिए उम्रा करना ज़रूरी है, हज करना ज़रूरी है, आप सबकी के दिली ख्वाहिश रहती है, लेकिन हर तरफ फैसिलिटी मिलती है। लेकिन फैसिलिटी मिलने के बाद वहाँ पे जो आपको जो रहन सुकून और खाने पीने के लिए जो भी इंतजाम जो मिलते हैं, लॉन्ड्री मिलती है, वहाँ जाने के बाद में आपको सिर्फ इबादत करना पड़ता है। ये सब चीज़ें के लिए इसीलिए यहाँ पर रैयान टूर्स एंड ट्रैवल्स में आने के लिए हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं और अच्छी उम्दा सर्विस के साथ में उनकी फैसिलिटी। आपका नाम बताइए पूरा। मेरा नाम अशरफ खान है, मैं औरंगाबाद से हूँ यहीं से। थैंक यू, शुक्रिया।